what is the lost table? तो प्रभु भोज क्या है? The Bible talk about lost table. बाइबल बताती है प्रभु भोज के बारे में। Bible talk about in this Bible very important things. एक बहुत जरूरी चीज है इस बाइबल में। Lost table प्रभु भोज and baptism. और बपतिस्मा। This is very important. ये बहुत बहुत जरूरी है in Christian life. एक मसीह जीवन। Those who believe in Jesus जो Christ. यीशु में विश्वास करते हैं, This is a sacrament. ये एक बहुत ही पवित्र चीज है। This is the covenant. ये एक वाचा है। Not a holiness, but this is a sacrament. This is a covenant. ये एक तरह की वाचा है। And this is God command us. ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। And in the Christianity there is a two covenant. मसीहत में दो वाचाएं हैं, The baptism बपतिस्मा and the lost table. और प्रभु भोज। This is not a ritual. ये कोई रिवाज नहीं है। This is not a ritual. ये कोई रिवाज नहीं है। When you do havan, so many things ritual. जैसे हम हवन लोग करते हैं। So when the Christian doing, okay, this is the Jesus blood and this is the Jesus flesh and all these things we are doing, this is not a ritual. तो जब इसको प्रभु भोज का दाख रस और इस रोटी को लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कोई रीति रिवाज ऐसे करना होता है। But in the spiritual realm, पर आत्मिक रूप में if you say that this is the flesh of Jesus, जब आप ये बोल देते हैं कि ये यीशु की देह है जो मैं खा रही हूँ, this become the flesh of तो Jesus. यीशु की देह ही बन And जाती if है। you say that this water is this wine and this is the blood of Jesus, then become the blood of और आप Jesus. कहते हैं कि ये दाख रस यीशु का लहू है और आप इसको आत्मिक रूप से कहते हैं तो ये वही बन So जाता है। this is not the ritual and tantra mantra, no. ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है कि आपने पूजा किया और आपने खा लिया। And then also I was really touched when we are first time coming to our church and today one of my sister was sitting, I was really blessed. तो पास्टर कह रही कि जब आज कलीसिया में आई तो एक बहन ने इनसे कोई चीज बांटी तो बहुत अच्छा लगा। They say that the family call her to be havan. तो वो कह रही कि परिवार ने बुलाया कि हवन करो। So she was sitting in the, for her she's people family is doing havan. तो बैठी थी और फैमिली के लोग हवन कर रहे थे For her. उसके लिए। Then the pandit was doing havan, so many talking about this ritual. और पंडित पूजा पाठ कर रहा था और ऐसे कर रहा So she cannot able to deny. तो वो मना नहीं कर पाई वहाँ She was बैठी। sitting. तो उसे हवन में So बैठना when पड़ा। the person is doing all this ritual, जब वो रीति रिवाज कर रहा था and she was talking about Yeshu Masih, Yeshu ke jai, Yeshu ke jai, Yeshu ke jai. तो Then pandit said, what is in your heart? She thinks that the inside she is doing like तो that. वो ऊपर नहीं बोल रही थी, अंदर अंदर बोल रही थी यीशु के लिए। तो पंडित कह रहा क्या बोल रहे हो तुम मन में? What is speaking in your heart? तुम मन में कुछ बोल रहे हो। That's you see the name of Jesus you're taking is powerful. आप देखिए यीशु के नाम में कितनी शक्ति है। So it disturbed to the pandit. तो पंडित को परेशानी हो रही थी बैठ। So the pandit said she is continuing and she's inside with the son in her heart. She said, no pandit will stop. I will not stop. She said, Yeshu ke jai, Yeshu ke jai, Yeshu ke jai. Then pandit said, get out. तो पंडित ने कहा निकलो यहाँ से, तो परेशानी हो रही है तुम्हारे बैठने से। So that way she go out like that. और इस तरह से वो निकल गई। See, that is the thing. ये चीज है। So our God is almighty. हमारा परमेश्वर And महान all है। these things in the church, baptism, lost table, it is not a ritual. तो यहाँ जो बाइबल पढ़ते हैं या प्रभु बोल देते हैं वो रीति रिवाज नहीं है। But God command us लेकिन परमेश्वर ने कहा to do. करने के लिए। So baptism is that the day that you accepted Jesus तो Christ. बपतिस्मा आखिर है क्या? बपतिस्मा जिस दिन आपने यीशु में विश्वास किया। God said, go into the world, preach the gospel. परमेश्वर ने कहा ठीक है दुनिया में जाओ सुसमाचार बांटो। Those who believe. जो भी विश्वास कर ले उसे बपतिस्मा दे दो। Means to go into the immersion in the water so that all your sins will go away in spiritual तो way. बपतिस्मे का अर्थ क्या है कि आप पानी में डुबकी लगाते हो और आप पानी से जब बाहर आते हो तो आत्मिक रूप से आपका पुराना जीवन खत्म हो चुका होता है। You are same person. आप बाहर से देखने में वैसे ही लगते हो But now you become a new person. पर आत्मिक रूप से आप परमेश्वर में नए हो जाते हैं। Jesus take all our sin on the cross. परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्रूस पे लेके मर Your गए। curse, your sins, your problems, your struggle. हमारे श्राप, हमारी परेशानियां, हमारी मुश्किलें Satan bring. शैतान तो लाया Deposit in your life. और हमारे जीवन में भर दी And Jesus took. और यीशु मसीह ने And ले he ली died. He hung on the cross. और क्रूस पे जाके मर गए हमारी And so परेशानी। we put the cross, and this is not to worship the cross. तो हम कलीसियाओं में घरों में लोग क्रॉस तो लगाते हैं लेकिन क्रूस का मतलब ये नहीं कि इस पर टीका लगा के इसमें माथा टेकते हैं। Don't worship cross. क्रूस की भी पूजा पाठ नहीं करनी है। We are not worship any image. हम किसी भी मूर्ति की किसी भी छवि की पूजा नहीं करते और ना ही क्रूस की God करते। is the spirit. परमेश्वर आत्मा है We worship the spirit और of हम God. आत्मा की आराधना करते हैं। And God is in you. परमेश्वर आप में है। God is not all these images. परमेश्वर इस लकड़ी के अंदर नहीं रहता है But we put it पर हम फिर भी क्यों लगाते हैं? to remember what God has done. सिर्फ ये याद करने के लिए कि क्रूस को देख
बलिदान याद Because आता है। God saved our life on the cross. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया क्रूस He पर, gives salvation. उन्हें उद्धार दिया क्रूस पर। Before you are going to go to hell, पहले हमारे जीवन के चक्कर में तो हम नरक में जाने but वाले, He died on the cross. पर हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे मरे And you are spiritually dead. और आत्मिक रूप से हम मर चुके थे। But when Jesus died on the cross, लेकिन जब यीशु क्रूस पे मरे, He shed His blood. उन्होंने अपने लहू को बहाया, So now in spiritually, whoever believes तो आत्मिक रूप से जो भी विश्वास कर लेता है, that blood of Jesus, तो यीशु का जो लहू you become alive. वो जिंदा हो जाता है। Now when somebody's accidents and something happen, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है all they need a blood. और उसे खून की जरूरत होती If है, the people who die, the people say they need a blood. Doctors say they need a तो blood. डॉक्टर कहते हैं कि खून की कमी है, वो ये खून चढ़ाना पड़ेगा। So the people buy blood or people donate the तो blood. लोग जाके खून खरीदते हैं या फिर कहते हैं कि डोनेट कर दो प्लीज, Then the person get it and they inject it, the person alive. और उस इंसान पे खून चढ़ाया जाता है और उसके तो जिंदा ठीक हो जाता है। Same thing. ऐसे ही We are spiritually dead. Satan bring us dead. तो शैतान ने जो हमारे जीवन में पाप डाले, उसके कारण हम आत्मिक रूप से मरे And there हुए is थे। no way to alive. तो हमें जिंदा होने का कोई रास्ता ही नहीं You है, are dead. हम मर गए थे And we need the blood और हमें लहू चढ़ाने की जरूरत to होगी live, to ताकि alive हम again. दोबारा जिंदा हो जाए, To live again. दोबारा जिंदा हो That जाए। is why Jesus इसलिए यीशु shed His blood. और अपने लहू को बहा So दिया whoever believes Jesus, ताकि जो भी यीशु में विश्वास करे। now you are died. अब हम मर गए थे, Now when you believe it, अब विश्वास जब you कर लिया receive the blood of तो Jesus. यीशु के लहू पर भी And विश्वास now कर लिया, you are resurrected again. और जब लहू आ गया तो हम दोबारा जिंदा भी हो गए, दोबारा जिंदा हो The गए। same manner, इसी तरीके से after that, मृत्यु के बाद in the Old Testament time, in the New Testament, when we see in the lost table, अगर हम देखते हैं प्रभु भोज की रीति को, lost table is that you believe in Jesus. तो प्रभु भोज आके है क्या, मतलब आपने यीशु में विश्वास So कर लिया, those who believe in Jesus, तो जिसने विश्वास कर लिया, Jesus told to the disciple. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने चेलों से कहा, See, Jesus was celebration in Passover. आप ये देखें कि वहाँ पास ओवर का सेलिब्रेशन चल रहा था। Let us turn to book of Luke. हम बोलते हैं लूका का सुसमाचार, And Luke chapter 22, लूका 22 verse 15. Luke chapter 22, verse 15. Everywhere in the Matthew, Mark, Luke, John, everywhere is recording. But let us read in Luke chapter 22, verse 15. लूका 22 का 15 से पढ़ते हैं। Okay, pretty read. और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, Amen. And then also read further. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। Amen. And then also let us turn to Mark 14. मरकुस 14, Yes, Mark 14. हम खोलते हैं मरकुस का सुसमाचार अध्याय 14, Yes. पेज नंबर 74, नया नियम 74 पेज। Mark 14, verse 22. 22 to 25, 26. 75 पेज नंबर नया नियम। Read. मत्ती के बाद जस्ट मरकुस, मत्ती के बाद मरकुस। Okay, so let's read this again. मरकुस 14:20। But if you want to know the whole story, I want you to read from the verse 14. हम 14वें वचन से पढ़ते हैं। 14 का 14, Okay, 12, you start from there. 14 का 12। अब मेरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए और तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाकुशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे
मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो वह उसके लिए भला होता। 22 प्रभु भोज। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में ना पीऊं। Amen. So here the Bible talk about that lost table is the original and it is the founder of Jesus and this is the covenant by तो Jesus. बाइबल ये बताती है कि जो प्रभु भोज है ये किसी व्यक्ति ने शुरुआत नहीं करी, लेकिन यीशु मसीह ने खुद शुरुआत करी। So lost table come from exist from Jesus Christ. तो प्रभु भोज कब से शुरू हुआ? जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ पहली बार इसे खाया। And so many other covenant, 10 commandments, all these things, started from Moses. आप ये देखिए, जब हम 10 आज्ञाओं की बात करते हैं वो मूसा के समय से शुरू हुई। So the original of the lost table come from Jesus. तो प्रभु भोज यीशु मसीह से शुरू हुआ। Jesus is the one who instituted the lost table. यीशु मसीह है जिन्होंने प्रभु भोज का एक नया नियम चालू किया। So now we already read the it is a Passover. तो बात हम कर रहे हैं फसह का पर्व, एक त्योहार मनाया जाता है। If you want to know the Passover detail, अगर आपको जानना है कि फसह होता क्या है, we will not read, but later you can read in your house. तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। No, Exodus chapter 12. तो एक्सोडस में जाके देख सकते हैं निर्गमन की In किताब में। Exodus, no, we are not going to read, but I want you to go back and read. Exodus chapter 12 talk about Passover. निर्गमन की किताब के 12वें अध्याय के अंदर फसह के पर्व के बारे में बताया गया है। And Deuteronomy also talk about the, Passover. और व्यवस्था विवरण में भी इसके बारे So में। Exodus chapter 13, chapter 12, chapter 14, all about Passover. आप ये देखिए व्यवस्था विवरण के 12-14 के अंदर पूरा फसह पर्व के बारे But में। look this side. So this is the story that in the Israelites they used to celebrate a Passover. आप ये देखें, इजरायली लोग फसह का पर्व मनाते थे। So what is a तो Passover? फसह क्या होता है? Passover is that when they are in Egypt, they are under the slave of the Pharaoh. आप देखिए फसह का पर्व कहाँ से शुरुआत हुई? जब इजरायली मिस्रियों के गुलाम बन के मिस्र में रह रहे थे। So the Egyptians were torturing the Israelite people. और मिस्री लोग इजरायलियों को रोज-रोज सताते थे। That Israelite people were crying out to the Lord, Lord, come and help us. और इजरायलियों ने रो-रो के परमेश्वर को गुहार लगानी शुरू करी। Then God sent Moses. और परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसे Moses, भेजा। go back to the Egypt and deliver my people. I hear the cries of my और people. उसने कहा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अपने लोगों का रोना सुन लिया है, तो तुम मिस्र जाके इजरायलियों को बाहर निकाल। So Moses come to Egypt again. तो मूसा इजरायलियों को निकालने के लिए मिस्र में And बाहर now गया। when he come, और जब वो गया Egyptians were torturing the Israelite people. तो उसने देखा कि मिस्री लोग इजरायलियों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। In India, भारत में before 1947, आप देखिए 1947 से पहले British were ruled India. अंग्रेजों ने भारत देश पे राज किया। India was suffered. भारत में लोगों ने बहुत परेशानी We सही। are not in that time. ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उस समय में नहीं हैं। People who are our forefathers, they know how much they are suffered in the hands of British. आप ये देखिए, हमारे पूर्वजों ने देखा है कि अंग्रेजों के हाथों में कितना वो लोग सताए जाते थे। The outsiders come and capture कि our बाहर land. के लोग आके हमारे देश पे राज करते थे। And now they become the owner and they are torturing you. They can do anything in your life. और वो आपके जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, आपको परेशान भी कर सकते हैं, आपको गलत भी कर सकते हैं। Then now Mahatma Gandhi, और महात्मा गांधी, Subhash Chandra Bose, सुभाष चंद्र बोस, they will write some, no, this is our land, this is our right. You have no power to rule over our country. और उन्होंने जाके ये निर्णय लिया कि नहीं, हम आजादी के लिए लड़ेंगे, हमारा देश है, तुम हम पर राज कैसे Get out of करोगे? my country. हमारे देश से तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। Fighting start. और लड़ाइयाँ शुरू हुई And everywhere they come against them. और बहुत सारे लोग आए, आंदोलन करने लग गए। Then now they give up. The British people give up. Yes, this is not our land. Let us और go back. बहुत समय का आंदोलनों के बाद, बहुत सालों के बाद अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। So now Mahatma Gandhi and all they give us the freedom. तो आप ये देखिए, महात्मा गांधी और बहुत सारे लोगों के बहुत मेहनत करने की वजह से आज हमें आजादी So मिली। now you are living in India with freedom. आज आप ये देखिए, भारत के अंदर आज आप और मैं आजादी से जीवन जी रहे Now हैं। you are living in your own country. हम अपने देश में आजादी से जी रहे हैं। The same thing. Listen. इसी तरीके से इधर देखिए, Same thing. The Israelite, the God's children are they are under the control of Egyptians. इसी तरह से
इजरायली लोग मिस्रियों के हाथों में उनके गुलाम बन के रह रहे हैं। Then Moses comes. तो मूसा आया, He is the leader. God sent him. तो मूसा एक Go अगुवा and deliver my people. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें चुनता हूँ, मेरे लोगों को बचाओ And bring out from Egypt and lead to the promised land. और उन्हें मिस्र से बाहर निकाल के परमेश्वर की वादे की जगह पे लेकर I आओ। give you the promised land. मैंने तुम्हें जगह दे दी है, Bring it out. लोगों को बाहर So निकालो। when the Moses comes, जब मूसा आया, he got to so many miracles. परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कारों को 9 plagues he bring. आप ये देखिए बहुत सारी महामारियां आई, But the Pharaoh said, no, these people will not go. पर फिर भी फैरो ने बोला कि नहीं मैं तो इन लोगों को जाने नहीं If दूंगा। these people go, who will work for us? तो फिर उन्होंने बोला कि अरे अगर इजरायली चलेगा तो हमारे लिए काम कौन करेगा? Who will build house for us? तो हमारे लिए घर की कौन बनाएगा? Who will make kitty for us? हमारे ईंट काम कौन करेगा? So they say no. उन्होंने नहीं मैं Then नहीं he जाने was देता। giving so many miracles after another. तो परमेश्वर ने अलग अलग चमत्कारों के द्वारा बताया कि मैं हूँ और जो बुला रहा हूँ मेरे बच्चों को। Then the last, फिर अंत में God told them, परमेश्वर ने कहा okay, they are not allowing you to go. अभी भी फिरौन ने कहा कि अच्छा ठीक है अभी भी इन लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे। Then God gave a command. तो परमेश्वर ने कहा, He told to the Israelite people, उन्होंने इजरायलियों से कहा and he told to the Moses and Aaron, the leaders, और मूसा और आरोन से कहा, you kill a lamb, परमेश्वर ने कहा कि एक भेड़ को मारो, and the pure lamb. एक बहुत साफ सुथरी भेड़ उठाओ। The lamb is talk about Jesus. मतलब भेड़ मतलब यीशु। And so they say that you kill the lamb, उस भेड़ को लो और मार दो, that blood, और जो उससे खून you निकलेगा put in a doorpost. अपने अपने घरों के दरवाजों पे लगा दो। And then in that, then God also told so many directions. I will not go into that. And you do this, you do this. परमेश्वर ने बताया कि अपने घरों पे लगा दो और बहुत सारे अलग अलग नियम भी बताए। Then God told the day, the time, the hour, everything. तो परमेश्वर ने बताया कि किस समय परमेश्वर क्या करने वाले हैं, उन्होंने इस बारे में बताया। And then Moses said, okay. And now he told all the Israelite people. तो मूसा ने इस बात की जानकारी सारे के सारे इजरायलियों को दे दी कि उन्हें अपने घरों के दरवाजे पे उस मेमने का लहू बांधना है and put the blood on the lamb. और उस मेमने का लहू निकाल के दरवाजों पर लगाना है सबने। So now the one night, तो एक रात को क्या हुआ? the angel of God परमेश्वर का दूत passed the whole night in Egypt. वो इजराइल में घूमा, And then Egypt. So now मिस्र में घूमा, and so the angel just passed by Egypt. जो परमेश्वर का दूत था वो मिस्र में घूम रहा And था when he see the doorpost of the blood, और उसने जिसके घर के दरवाजे पर वो मेमने के लहू को the देखा, angel did not come. उनके घर में वो नहीं The गया angel passed by. और बाकी घरों में गया, And the Egyptian house there is no blood. और जो मिस्री लोग थे उनके घरों के दरवाजों पे लहू नहीं लगा हुआ था। तो वो परमेश्वर का दूत आया And the angel killed the firstborn son of Israel. और परमेश्वर के And दूत Israel ने people. उन परिवारों के पहलौठे मतलब पहले बच्चे का खून कर दिया। So the whole night, तो पूरी रात when the morning come, जब सुबह हुई, every Egyptian first son was died. हर मिस्री इवन फिरौन के भी घर का बेटा हर कोई मर गया They were crying. और लोग रो रहे थे। Moses were angry. मूसा को गुस्सा भी आ रहा था, And no, Pharaoh were angry. फिरौन को गुस्सा आ रहा था। And Pharaoh told him, Moses, what you have did? My son, only young, old son, elder son was dead. क्योंकि सबके बच्चे मर गए तो फिरौन का बेटा भी मर गया। फिरौन ने मूसा को बोला कि क्यों तुमने ऐसा किया, हमारे बच्चों को मार दिया। The Egyptian nobody died, and the Israelite people nobody died. इजरायलियों के अंदर तो परिवारों में एक बच्चा भी नहीं मरा और मिस्री के सारे बेटे मर गए। Then the whole city, the whole country were crying that पूरे day. देश के अंदर सिर्फ रोना और पिटना हो रहा था। The Israelite nobody died. इजरायलियों में तो कोई नहीं मरा। Then the Pharaoh was so angry. तो फिरौन को बहुत गुस्सा आ रहा था। Pharaoh told them, फिरौन ने कहा, you Israelite, get out of my country. उनका इजरायली लोग निकलो, तुम मेरे देश को बड़े रहने से बड़े बच्चे No, मर रहे get हैं। out. अभी के अभी निकलो यहाँ से। So from there, let us go to our promised land. तो उन लोगों बोले अरे वाह चलो अपनी जगह। So now they packed the things and they hurry और उन and लोगों go. ने सब सामान अपना लेकर पैक करके वो लोग मिस्र से बाहर निकल गए। But they are in the wilderness 40 years. We are not going to go into that. And that day God delivered from bondage of slavery to the promised land. और उस दिन परमेश्वर ने गुलामी से बाहर निकाल के इजरायलियों को मिस्र से बाहर कर दिया। So now when they entered to the promised land, Israel. और जब वो इजराइल मतलब अपने देश में पहुंचे, So every year they remember the day that what God has done from Egypt to promised land. तो गुलामी से निकलने के बाद उन्होंने उस दिन को, जिस दिन परमेश्वर उन्हें गुलामी से बाहर निकाला, तो उस दिन को मनाना शुरू करा। उसको फसह का पर्व नाम
So that day the celebration Passover. तो उसी दिन को याद करने के लिए वो लोग हर साल फसह का पर्व मनाते They हैं। are Passover from sin, Passover from bondage, Passover from slavery, Passover from every walk of the So Satan tormented. तो जैसे फसह का पर्व को इंग्लिश में बोलते हैं पास ओवर, मतलब कि उन्होंने मृत्यु पर पास कर लिया, पार कर लिया। They are, overcome the slavery, the torturing of the Egypt मतलब people. गुलामी को, परेशानी को पास करके वो आगे निकल गए, इसको पास ओवर कहा जाता है। So when they came to the promised land, every year they celebrate Passover. तो जब गुलामी से निकलने के बाद वो लोग इजराइल में अपने जगह पे रह रहे थे, तो उस दिन को याद करते हैं। Every year we celebrate Independence Days. हर साल जैसे हम लोग भी आजादी का दिन मनाते हैं, The same thing is like when they enter to promised land, they celebrate the तो Passover. ऐसे ही इजरायली लोग जब अपने वादा की हुई जगह पे गए तो उस दिन को फसह So का now पर्व Jesus मनाते हैं। time, तो यीशु के समय में and the Passover is coming. जैसे फसह का पर्व आ रहा था, We read in the Mark. तो जैसे हमने मरकुस में पढ़ा, So Jesus need to go to the Jerusalem यीशु को भी यरूशलेम जाना था, for the Passover feast. क्योंकि सारे के सारे इजरायली पास ओवर फसह का पर्व So मनाने के लिए आते हैं। every Israelite people they used to celebrate every year's Passover तो feast. हर साल सारे इजरायली फसह का पर्व मनाते हैं, They used to celebrate 1 week. और वो कम से कम एक हफ्ता वो पर्व चलता ही रहता है। So they were celebrating. So Jesus also need to go to Jerusalem. तो यीशु को भी सारे इजरायली लोग, यहूदी लोग इजराइल जाते Jesus हैं। is not born in Jerusalem. यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा नहीं हुए थे। The Israelite under there is so many country, there is so many state. आप ये देखें, इजराइल के अंदर बहुत सारे प्रदेश हैं। Israel is a nation. इजराइल एक देश है, In under the Israel, और देश के अंदर Jerusalem is the capital of Israel. यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। In the Delhi is the capital of India. जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। I come from Manipur state. पाकिस्तान मणिपुर से आई है, Some are coming from Bihar, कोई बिहार से आए हैं, UP, कोई यूपी से आए हैं, Punjab, कुछ पंजाब से आए हैं, Africa, Nigeria. कुछ लोग भारत के बाहर से भी आए हैं। See, we are in the capital of India. हम भारत की राजधानी So में, Israel also under that there is a Jerusalem, there is a Galilee, there is a Bethlehem, there is a Nazareth, and there is so many states. ऐसे इजराइल के अंदर भी बहुत सारे प्रदेश हैं, जैसे यरूशलेम, गलीली और बेथलेहम, So नासरत। Jesus was born in Bethlehem, तो यीशु मसीह का बेथलेहम में जन्म हुआ, but he was brought up in Nazareth, पर बड़े वो नासरत में हुए, and his ministry started in Galilee. और उनकी सेविकाएं Different states. अलग-अलग प्रदेशों में So चली। Jesus was working and doing a ministry in Galilee. तो यीशु मसीह गलीली में अपनी सेविकाएं So कर now रहे थे। Passover is coming. तो जब फसह का पर्व आया, They are need to go to Jerusalem, the capital of Israel. उन्हें भी इजराइल की राजधानी मतलब यरूशलेम में जाना जरूरी So था। now Jesus went for the तो Passover. यीशु मसीह फसह के पर्व के लिए यरूशलेम गए। So in the Passover is going to happen after 2 days. तो फसह का पर्व अगले 2 दिनों में था। Then Jesus told to the disciple. यीशु मसीह ने चेलों से कहा, When we see the Matthew chapter 26, verse 26, and then also Mark 14, and also Luke chapter 22, we see all these things, and then also Paul talk about in this lost devil in the 1 Corinthians chapter 11. तो आप ये देखिए पहले कुरिन्थियों 11वें अध्याय में पौलुस ने बताया, मत्ती के अंदर 26वें अध्याय में मार्क। So all these things the word of God was. So Jesus come to the Passover feast. आप ये देखिए यीशु मसीह फसह के पर्व के लिए यरूशलेम आए, And disciples were there, तो वहाँ पे चेले थे, and then in the city. और शहर में Then Jesus told the disciples were told, चेलों को बताया गया, Guru, where we are going to celebrate the Passover feast. चेलों ने बोला कि गुरु हम ये फसह का पर्व कहाँ मनाएं? Then Jesus sent some disciples there. यीशु मसीह ने 2 चेलों को लिया और कहा तुम जाओ, Go to the city, you will see one man. शहर में जाओगे ना, वहाँ तुम्हें जाके एक आदमी मिलेगा, And you follow that man. और उस आदमी के पीछे पीछे चलते जाना, And that man there is a building. और उस आदमी के घर के अंदर एक वहाँ पे जगह है, Upper room. ऊपर जो छत से पहले की जगह है, You ask them. उससे बोलना, We need to celebrate Passover in that room. उन्हें बोला कि गुरु ने कहा है कि फसह का पर्व तुम्हारे घर में मनाना है। Then they go out. वो गए, And they really see the man. और जब गए सच में एक And आदमी they मिला, follow that house. उसके पीछे पीछे गए, And they ask them, और उसने कहा please give us your room, upper room. हमें जगह दे दो फसह के पर्व के लिए। Then they say, okay, take वो it. कहते हैं हाँ ले लो। So they prepared a Passover in that room. तो उस जगह पे उन्होंने फसह का पर्व मनाया, And they were entering और वो उस घर के अंदर गए। in that night. उस रात को And they were sitting. वो सारे के सारे यीशु All the मसीह disciples. और उनके 12 चेले टेबल पे बैठे हुए थे, 12 चेले And sitting in the upper room. अपर रूम में बैठे थे, अटारी पर। And now
उसके बाद क्या हुआ? And let us turn again to Luke chapter 22. हम खोलते हैं लूका को सुसमाचार 22वां अध्याय। So in that night, उस रात को Jesus took the cup, Jesus took the bread. Turn to Luke chapter 22. लूका 22 खोले, 122 पेज नंबर 122 नया नियम। So in that night, Jesus took the cup यीशु ने कप लिया and he said, "Drink it." उन्हें कहा इसे पी लो। And he took the bread and he broke it. Which verse pastor? In Luke chapter 22 verse 19. 22 का 19 में लिखा हुआ है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, And he said, "This is my body. ये मेरी देह है, Eat it." जो So now तुम्हारे the लिए जाए। bread become the body of Jesus Christ. मतलब वो रोटी यीशु के शरीर बन गई। And then now he took again the cup, the drink. See, when you eat food, you have a water. तो ऐसे अगर लोग खाना खाते हैं उसके बाद पानी भी पीते हैं। Then Jesus took the cup तो यीशु मसीह ने कप लिया and he said, "This is my blood. और उसके अंदर जो दिखा दाखरस कहा कि ये मेरा लहू है, I have set for you. जो मैं तुम्हारे लिए बहा And remember, और इसे याद करना, do it इसे करना until I return." जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। See, Jesus remind us about his coming back. यीशु मसीह ने हमें बता दिया पहले ही कि मैं वापस आऊंगा I will come back और कहा कि मैं दोबारा until आऊंगा। that you do. उनका जब तक मैं वापस नहीं आता ना तब तक करते रहना। That is what we are doing until Jesus इसलिए returns. जब तक यीशु आ नहीं जाते हमें करते रहना है। So now that is how the Lord's table take place. तो प्रभु को जैसे ही होता है, Jesus said, "Remember, यीशु मसीह ने कहा याद whenever करना। you do the bread, whenever you come together, fellowship together, तो यीशु मसीह ने कि जब भी तुम संगति साथ में करो तो तुम इसे खाना। come together the disciples." जब सारे चेले साथ में So आए, who is the disciple? तो चेले कौन है? The people who believe in Jesus जो Christ, भी यीशु में विश्वास करते हैं who follow Jesus और Christ, यीशु के कामों में who चलते हैं, follow the teaching of जो God, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते who हैं, believe in Jesus, जो विश्वास who करते हैं, accept it as a personal जो उसको Savior, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपना लेते हैं, they took the Lord's table. वो भी प्रभु को खाते हैं। That's why sometimes we say, if you are not baptized, you are not yet believed, you should not take it. इसलिए हमेशा कलीसिया में बताया जाता है कि अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप प्रभु को नहीं ले सकते। So now the Lord's table originated from Jesus तो Christ. प्रभु भोज की शुरुआत यीशु मसीह ने ही करी है। Jesus is the founder of the Lord's table. यीशु मसीह ही इतिहास के अंदर पहले हुए जिसने प्रभु भोज शुरू किया। That night, उस रात को the Lord's table started प्रभु भोज शुरू हुआ until today, until he और आज returns. तक हो रहा है और होता रहेगा। So now what are the Lord's table? Is that commanded by God, तो प्रभु भोज मतलब जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि करना है, and it is God commanded children of God to who follow until he returns. और उनके जितने परमेश्वर के बच्चे हैं परमेश्वर के वापस आ जाने तक ही करते रहे। So the purpose of the Lord's table. तो प्रभु भोज करना क्यों है? What is the purpose of the Lord's table? क्या मकसद है प्रभु भोज का? Why we do it? क्यों करते हैं हम? Because Jesus commands us. यीशु ने कहा इसलिए करते हैं। Those who follow जो Jesus. यीशु के पीछे चलते हैं That is why we obey the Bible. इसलिए हम बाइबल के पीछे चलते हैं। This is not a ritual. ये कोई रीति रिवाज नहीं है। So we obey God. हम सिर्फ परमेश्वर के वचन में चलते हैं। When we follow Jesus, जब हम यीशु के पीछे चलते every हैं, teaching, everything God said, don't do, don't. We follow Him. जब परमेश्वर ने कहा ये करो तो हम करते हैं, वो कहते हैं मत करो तो हम नहीं करते। And when we take the Lord's table, और जब हम प्रभु भोज लेते हैं, you become the fellowship with God. मतलब परमेश्वर की एक संगति में आ जाते हैं। So Lord's table is also a sign of worship. मतलब प्रभु भोज भी एक तरह की आराधना है। When you do the Lord's table, या प्रभु भोज करते हो, this is a sign of worship. मतलब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। You are taking the Lord, God's परमेश्वर blood. के लहू को आप ले रहे हो, You're taking the God body. परमेश्वर के शरीर को खा रहे हो। So you are, you and God become one body. मतलब आप जब आप परमेश्वर का शरीर आपके अंदर गया तो परमेश्वर का शरीर आपका शरीर एक। Now you and God become a one. मतलब आप और प्रभु एक हो जाते हैं। That is why this is very important. और इसलिए प्रभु भोज बहुत जरूरी है। So when you take God and God is dwelling in you, तो जब आपने परमेश्वर को अपने अंदर ले लिया तो परमेश्वर आपके अंदर काम भी and करता when है। God dwells in you, और जब परमेश्वर आपके अंदर काम करता है Satan has no power to तो dwell. शैतान कैसे आपके अंदर रहेगा? And no other darkness has no power to dwell. और अंधेर जब रोशनी आपके अंदर है तो But when अंधेरा कैसे there is रहेगा? no God, लेकिन जब परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है there is a Satan. तो शैतान तो घुसेगा ही। So now Lord's table is very important because you and God become one flesh, one blood, one body. तो प्रभु को जिसने जरूरी कि परमेश्वर का शरीर हमारा शरीर, परमेश्वर का लहू हमारा लहू हो जाता है। And then we remember what God has done for और us. हम ये याद करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। What Jesus has done for you. यीशु ने क्या किया आपके लिए? He done for you from sickness, God healed. परमेश्वर ने बीमारियों से बाहर निकाला। God has done for you from death to life.
हम मरे हुए थे, आत्मिक रूप से हमें जिंदा किया। Satan take you to the hell, the place, destination, but God remove out. शैतान ने तो चाहा कि हम नरक में चले जाएं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तुम स्वर्ग में God जाओगे। provide everything for you. परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा किया। House, children, country, nation, family, relatives, church. आप ये देखिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना मुझे शरीर दिया, ये कलीसिया दी, परिवार दिया, घर दिया, कपड़े दिए। He giving us salvation. हमें उद्धार दिया। Whoever believe they will never die. This flesh will die, but you go to heaven. यीशु मसीह ने कहा कि शरीर तो मरेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार दूंगा। So now when you take the lost devil, तो जब आप प्रभु भोज ले लेते हैं, now you are sitting with God, अब मतलब परमेश्वर के बैठे हैं, communion with God, आप परमेश्वर से संगति कर रहे and you हैं, are worshiping the Lord. परमेश्वर की आराधना कर रहे That's हैं। why lost devil is very important. इसीलिए प्रभु भोज बहुत बहुत जरूरी है। But if the person लेकिन अगर कोई इंसान is not believe in Jesus कोई Christ, इंसान अगर यीशु में विश्वास ना करे, they cannot share the lost devil together. तो वो साथ में प्रभु भोज नहीं ले सकते। The Bible says बाइबल बताती है the cup of devil कि शैतान का प्याला and the God cup और परमेश्वर का प्याला cannot share together. साथ में कैसे ले सकते हैं? Hindu or Muslim people who didn't believe they cannot drink together. हिंदू और मुस्लिम लोग जो यीशु में विश्वास नहीं करते, वो प्रभु भोज नहीं ले सकते। Bible tells very clearly. बाइबल साफ साफ बताती है। Let us turn to 1 Corinthians हम खोलते पहला कुरिन्थियों chapter 10, 10वां अध्याय verse 21. 1 Corinthians chapter 10, verse 21. 10:21 Yes. पहला कुरिन्थियों 10:21 1 Corinthians chapter 10, verse 21, very clearly written there. You cannot share the two cups together. 237 पेज नंबर नया नियम 237 पेज नंबर 10 का Yes. 22 21. 21 You read 21 and 22. Yes. तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुश्मन आत्माओं की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकती। Amen. And then 22. क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? Yes. Read. 23 Okay. 23. No, I just want you to read the 22 and 21 only. So now the Bible says you cannot share together, you cannot drink together in the same cup. तो परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु के प्याले से और दुष्ट आत्माओं के प्यालों से आप साथ में नहीं पी सकते। So that is why when you are taking lost devil and when you do, you must follow Jesus, you must accept Jesus, you must baptize and you become the disciple of इसका God. मतलब जब प्रभु को लेते हैं उससे पहले आपने बपतिस्मा लिया होना चाहिए, प्रभु विश्वास आपका होना चाहिए और आपका विश्वास किसी और चीज में नहीं होना चाहिए। The Bible says in the 1 Corinthians chapter 10 verse 22, you cannot drink the both cup together. तो बाइबल यहाँ पर क्या बता रही है कि हम दोनों प्यालों में से एक साथ नहीं पी सकते। The cup of devil कटोरा शैतान का भी and the cup of the और Lord. प्रभु का भी कटोरा, You cannot share. साथ में कैसे They नहीं? cannot stay वो together. साथ में काम ही नहीं So करते। if you are not believing Jesus अगर यीशु में विश्वास नहीं किया है and if you are taking, और अगर आपने फिर भी ले लिया है, then there is a problem. तो फिर परेशानी है। That is why the Bible said before you take, तो लेने से पहले examine yourself आप who पहले you अपने are. आप को जांचिए कि आखिर हम है कौन। So that is very important. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। So when you take out, there is a lost devil. तो प्रभु भोज Whenever we take, जब भी हम लेते हैं, we remember and now you become the child of God and the family of God, and now you can able to sit in the one table, you can drink one cup, you can drink one bread. अगर आपने यीशु मसीह को विश्वास कर लिया तो आप उनके परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, उनकी संतान हो जाते हैं और तभी आप उनके साथ बैठ के उनके दाखरस, उनके लहू और उनके शरीर को ले सकते हैं। Let us come to 2 Corinthians chapter 13 verse 15. इसी की अगली किताब दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 13 verse 5. दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय, इसी के 5-6 पेज आगे, I want you to read. 13 का 5 256 256 पेज नंबर। Yes. This is talk about the salvation when you are taking lost devil, examine तो yourself. वो बता रहे हैं कि जब प्रभु भोज लेते हैं तो पहले अपने आप को जांचे, अपने आप को परखें कि क्या हम उसके लायक हैं। Okay, 2 Corinthians. अपने आप को परखो कि विश्वास में है कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। Amen. So the Bible says you are truly surrendered to Jesus Christ when you are taking the lost devil. You are truly surrendered that He is my Lord, He is my Savior, He is my Redeemer, He is my Guru. I will die for Him, I will live for Him. That person need to take the lost तो devil. आपको प्रभु भोज तभी लेना है जब आपका विश्वास इतना दृढ़ हो कि नहीं, यीशु मसीह ही अकेला मेरा परमेश्वर है और मैं इसका विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा।
And then also when you attack the lost temple, you are reuniting the relationship. और जब आप परमेश्वर का प्रभु भोज लेते हैं तो परमेश्वर के संबंध दोबारा से बना लेते हैं। Let us turn to Colossians chapter 3 verse Colossians chapter 3 verse 12 to 13. कुलुस्सियों की किताब इसी के आगे Yes, Colossians chapter 3, पेज नंबर 257 Colossians chapter 3 verse 13 to 12. 277 I will say it here in English. Are you treating those in your life with the kindness, humility, gentle, respect, love, and all these things, treating and parents, children, and people, are you walking in the same place? See, this is talking about that when you took the lost temple, now you become a one family, one heart, one mind, and children obey, parents, and then also brothers, sisters in one united. And lost temple is not only you eat alone. तो प्रभु भोज कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अकेले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ आप संगति करते हैं, उनका एक परिवार एक हिस्सा बन जाते हैं। And when you come to the Lord, there is no discrimination. जब परमेश्वर में आते हैं तो कोई भेदभाव नहीं होता है। You are rich, you are poor, you are Brahmin, you are low class, you are super class. No. परमेश्वर ये नहीं देखता आप अमीर हैं, गरीब हैं, लोअर क्लास है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, क्या है परमेश्वर के लिए कोई मैटर नहीं करता। You are educated, you are uneducated. No, there is no discrimination. We all are one. अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े भी लिखे और आप अनपढ़ भी हैं, परमेश्वर के लिए बराबर ही है। So now when you have that attitude, the attitude of God, the mind of God, then they can have the lost temple, and this is very important to fellowship तो together. जरूरी ये है कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होनी चाहिए, परमेश्वर का दिमाग, परमेश्वर की सोच होनी चाहिए, और ये है तो प्रभु भोज आप ले सकते हैं। That is why the Bible says if you are doing the lost temple, you completely follow the Lord order and command. इसलिए बाइबल बताती है कि आप प्रभु भोज लेते हैं तो आप ये निश्चय कर लें कि आप परमेश्वर के पीछे चलते भी हैं। So written that yes, Colossians 3 verse 12 and 13. कुलुस्सियों 3 का 12 और 13 279 पेज नंबर। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। Amen. So the Bible said that when you take the lost temple, now you are no more, world, no more discrimination, no more, the word that break the thing, everything. तो अब परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम प्रभु भोज लेते हो तो उससे पहले तो मेरे साथ एक होने चाहिए। Respect one another. एक दूसरे की इज्जत Love करो। one another. परमेश्वर कह रहा है कि Help one तुम another. लोगों के साथ भी नम्र रहो, उनकी मदद करो, And forgive one another. एक दूसरे को माफ करो, Kindness one another. दया दिखाओ। That is God nature. परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर, चरित्र आपका ऐसा होना चाहिए। God loves everyone. परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता है। And the children of God परमेश्वर के बच्चे need to love one another. उन्हें हर किसी से प्रेम रखना है, Forgive one another. एक दूसरे को माफ भी करना है, Kindness one another. एक दूसरे के साथ दया दिखानी है, Helping one एक another. दूसरे की मदद करनी है, Pray for one एक another. दूसरे की प्रार्थना करनी है। And anything that you need to help, and you should not have my, I am my, me. No, that is Satan. और आपको ऐसा नहीं करना कि नहीं ये चीज तो मेरी है, दूसरे की नहीं। अगर आपके अंदर मैं ज्यादा है मतलब शैतान। Satan is never think for others. शैतान को भी दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपना सोचता है। Satan think only. शैतान सिर्फ क्या सोचता है? Satan is think he is selfish, he is greedy, he is hatred, he is unforgiving, he is fighting, he is addiction. आप ये देखिए शैतान की अगर हम चरित्र की बात करें तो वो कैसा है कि वो दया नहीं करता, प्रेम नहीं है, अपना सोचता है, घृणा करता है, जलन करता है। And Satan are happy when we are sad. और शैतान कब खुश होता है? जब हम दुखी होते हैं। And when you are happy, Satan is not happy. और जब हम खुश होते हैं शैतान दुखी हो जाता है। That is why every day Satan will make sure that you are sad, you are cry, you are complain, you no peace, no joy, and he will always come and take our joy, our peace, our blessing, our good health. और इसलिए शैतान हमेशा कोशिश करता है कि हम दुखी रहे, परेशान रहे, उदास बैठे रहे, और हमारे सारे आशीष, सारी अच्छी चीजों को ले जाना चाहता है। But Jesus wants every day you should be happy, joy, successful, rule the earth, and become the great on this earth. लेकिन यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हर रोज हम खुश रहें, आनंदित रहें और सफलताओं को पाएं और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। God never brings sickness. परमेश्वर कभी भी बीमारी नहीं लाता God है। never brings poverty. परमेश्वर कभी भी गरीबी नहीं लाता है। God is all the time good. परमेश्वर तो हमेशा ही भला है। He did have nothing evil. He don't know about evil. परमेश्वर बुरा करता नहीं, उसे बुराई के बारे में पता भी नहीं है। But Satan doesn't have good. लेकिन शैतान के अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं।
And Satan is all about evil. शैतान में सिर्फ बुरा ही बुरा है। So in our life, nothing is not working right. That means Satan is the one working out. अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है और कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर नहीं शैतान का। So now Jesus is, we are living like that. That's why Jesus said, let us come together, fellowship together, so that in your midst there will not be Satan to work. तो इसलिए यीशु मसीह कहता है कि साथ में आओ, संगति करो, ताकि तुम्हें तुम्हारे जीवन में शैतान को काम करने का मौका ही ना मिले। So we need to be communion together. तो इसलिए हमें साथ में संगति करना जरूरी है। But before you do that, लेकिन ये करने से पहले God also said, examine yourself who you are. परमेश्वर कहते हैं प्रभु बोल लेने से पहले खुद को देखो कि क्या तुम सही चल रहे हो प्रभु के If साथ। you are not really believing Jesus अगर Christ, आप यीशु में सच में विश्वास करते ही नहीं हो, examine yourself पहले प्रभु परखो, and come to God. फिर परमेश्वर का पछतावा करो, So that God will तौबा bless करो, your life. ताकि परमेश्वर आपको So that आशीष God दे, will touch your life. परमेश्वर के जीवन को So छुए, that God will transform your परमेश्वर life. के जीवन को बदल दे। So Paul also said to us, तो पौलुस भी हमें क्या बता रहा है? let us come to 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों पढ़े। Before we take, Paul also tells us to examine ourselves. पौलुस कह रहा है कि अपने जीवन को देखिए। हम बोलते हैं पहला कुरिन्थियों Yes, 1 Corinthians chapter 11 verse 27. The Bible says, therefore, whoever eat this 238 पेज नंबर, or drink this cup, the Lord unworthy manner, they will be guilty of the body and the blood and the Lord. But let us examine himself, and let him eat the bread and drink the cup. For whoever eat and drink unworthy manner, eat and drink judgment to himself, not discerning the Lord's body. But for this reason many are weak and sick among you, and many are asleep. For it is to judge ourselves, and we will not be judged. So here the Bible says, when you are taking Lord's table, when you come together, fellowship together, when you are believer together, examine yourself. तो बाइबल यहाँ क्या बताती है? पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय के 27वां वचन, नए नियम की किताब 238 पेज नंबर। इसलिए जो कोई अनुचित रीति मतलब गलत तरीके से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने पे अपने ऊपर दंड लेकर आता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल हैं, बीमार है, रोगी है और बहुत से सो भी गए, मतलब मर भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। So now what the God is telling that people, God say, whenever you come to God, तो परमेश्वर कहते हैं कि जब भी तुम मेरे पास आओ, whenever you fellowship together, जब भी संगति करो, God wants us to completely believe and surrender to Him, परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी तरह से समर्पण उनको कर दें, so that He can able to work. ताकि वो हमारे जीवन में काम कर Today दे। many people they call themselves a Christian, आज बहुत सारे लोग अपने को क्रिश्चियन तो कहते हैं, मसीही कहते but they हैं, cannot fellowship with God. पर परमेश्वर की संगति नहीं They करते, are far away from God. परमेश्वर से बहुत बहुत दूर है वो The लोग। name of Christian will never take you to heaven. आपके ऊपर अगर क्रिश्चियन का टैग लगा हुआ है तो आपको भी हेवन नहीं लेके जाएगा। Coming to the church will never take you to आपको heaven. कलीसिया में आना कभी स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। Healing you receive will never take you to अगर आपको heaven. चंगाई चाहिए थी, कलीसिया में चंगाई मिल गई तो वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। Anything that you ask, God provided, that will never take you to heaven. जो भी आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको दे रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप स्वर्ग चले जाएंगे। All these things are blessing of ये God. सब तो परमेश्वर की आशीष है, जो आपने मांगे आपको मिल गए, Given to us. वो आपको दे देता है मुफ्त में। Healing is a blessing. चंगाई तो एक आशीष है। This is the bread. The Bible says the healing is the silvern bread. बाइबल बताती है चंगाई तो मेरे बच्चों की रोटी है, मैं उनको दूंगा। Good health and money, all these are the blessing of God. परमेश्वर कहता है अच्छी सेहत, अच्छा घर, सब कुछ तो मेरे आशीष है, मैं But तुम्हें to दूंगा। be real child of God, लेकिन परमेश्वर की सच्ची संतान to बनने be के लिए, real eating with God, परमेश्वर के साथ खाने के लिए, is the person who believes Jesus is my Savior, who accepted Jesus is my King, my Lord, no matter what. तो जिस इंसान को परमेश्वर में पूरा विश्वास है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जो चलता है, So the person who are not examined eat this thing, the Bible says that person become weak and sick and die. और जो इंसान प्रभु को गलत रीति से लेता है, मतलब जो बपतिस्मा नहीं होता या गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है और फिर भी प्रभु भोज ले रहा है, तो उसके जीवन में बीमारियां आती हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। So that is why God said, don't examine yourself before all these things. Follow Jesus before all these things and examine and remove all the evil things. Change your heart, repent, convert, and believe Jesus. Follow Jesus. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं प्रभु भोज लेने से पहले देखो कि
क्या मेरा जीवन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो तौबा करो, पछतावा करो, उसके बाद अपने मन को ठीक करने के बाद ही प्रभु बोझ लो। But the good news is that whoever believes in Jesus Christ, लेकिन अच्छी खबर सुसमाचार ये है कि जो भी until विश्वास Christ करता है, return, जब तक यीशु वापस नहीं आ जाता, always come together परमेश्वर चाहते हैं कि हम साथ में आए, and fellowship together संगति करें, and do the Lord's Table. प्रभु Remember. बोझ भी करें और परमेश्वर को याद करें। So Lord's Table remind us what God has done for तो us. प्रभु बोझ हमें ये याद करवाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया। And Lord's Table also remind us about Jesus coming. और प्रभु बोझ हमें ये भी याद दिलाता है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, He is coming. वो आएंगे। So it's reminding you again and तो again. हमें बार-बार याद दिलाता है। Jesus said, until I return, do it. तो And यीशु ने remember. ये कहा जाने से पहले कि मैं जब तक वापस नहीं आता ना तब तक ही करना। So whenever we take the Lord's Table, इसका मतलब जब प्रभु बोझ लेते हैं we remember the day that the Lord says that He is going to come and take us to तो heaven. हमें याद आता है अच्छा प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे और हमें स्वर्ग लेकर ही जाएंगे। That is why the Lord's Table is very important. और इसलिए प्रभु बोझ बहुत ज्यादा जरूरी है। The one thing is that Lord's Table is not a ritual, लेकिन ये चीज समझ लें कि प्रभु बोझ कोई रीति रिवाज नहीं but है, this is instituted by God लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है और हमें करना है। and command to the children who believe in Jesus और Christ. शुरुआत भी यीशु ने किया और यीशु ने अपने संतानों के लिए किया। And He wants when you are take it, when you do it, now you become the body of Christ, and now you become the child of God. Now you become the family of God. Now you become the adopted by God. और यीशु मसीह ये कहता है कि जब तुम प्रभु बोझ लेते हो तो तुम मेरे साथ एक देह हो जाते हो और एक ही लहू हमारा हो जाता है। So that is why the Lord's Table is very important. All the children of God. इसलिए प्रभु बोझ लेना परमेश्वर की हर संतान के लिए बहुत ज्यादा So God जरूरी है। telling us that whenever you gather, He never said first month, second month, third month, but whatever when you come together, do it. तो परमेश्वर ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि कब कब हमें प्रभु बोझ लेना चाहिए, उन्होंने कहा कि जब भी संगति करो तो प्रभु बोझ लो। So that is the thing. That is why we people do the Lord's Table and baptism. और इसीलिए हमारी कलीसियाओं के अंदर हम प्रभु बोझ भी लेते हैं और बपतिस्मा भी होता है। So the very important thing, just keep in your mind, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जो आप समझें the Lord's Table. कि प्रभु बोझ, And when you are eat the blood of the flesh of Jesus, जब भी आप यीशु की देह को खाएं and when you are eat the blood of Jesus, और यीशु के लहू को पिए, now you become the one heart, one mind, one इसका मतलब spirit. यीशु के साथ एक हो जाते हैं। So this is very important to believe in Jesus. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है यीशु में जब आप होते And हैं। if you are not believing Jesus, अगर आप यीशु में विश्वास नहीं रखते it is very important to believe Jesus. तो ये जरूरी है कि पहले आप विश्वास करें। Very important to accept Jesus Christ as a यीशु Lord. को अपनाना ही बहुत बड़ी बात है, वो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, Because only He can save us. क्योंकि यीशु मसीह ही हमें बचा सकते हैं। And He only can deliver us, He only can give salvation. वो हमें छुटकारा भी दे सकते हैं और उद्धार भी दे सकते Only Jesus is God. हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर There है। is no other God before Him, behind Him, under the earth, beyond the sky. तो परमेश्वर कह रहा है कि धरती के ऊपर, धरती के नीचे, आसमान के ऊपर कहीं पर भी कोई और यीशु मसीह के अलावा परमेश्वर In नहीं है। Exodus chapter 20, निर्गमन 20 में the Bible says, I am the God. बाइबल बताती है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं प्रभु हूँ, There is no other मेरे God. अलावा कोई प्रभु है ही नहीं। So to have that God, और वो प्रभु अगर हमें चाहिए, we need to follow Him. हमें उनके पीछे चलना We है, need to believe Him. विश्वास करना है। And when you believe it, जब विश्वास करते हैं you need to completely obey the Bible. तो आपको बाइबल में लिखे हर एक वचन पे चलना है। The Bible says believe, बाइबल कहते हैं विश्वास करो, baptize, बपतिस्मा लो, do the Lord's Table, प्रभु बोझ लो, follow my teaching. मेरे पीछे चलो। So you say I'm a believer. अगर आप कहते हैं मैं विश्वासी हूँ And if you are not taking the Lord's और Table प्रभु बोझ नहीं लेते हैं, and you are not baptized, बपतिस्मा भी नहीं लिया that है, means we are not completely obeying the God. इसका मतलब परमेश्वर के वचन में से कुछ फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं The कर रहे हैं। Bible says obedience is better than sacrifice. बाइबल बताती है कि अब आज्ञा का मानना किसी भी बलिदान से बढ़कर है। So obedience is better. तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना सबसे You may महत्वपूर्ण be sacrificed so many things for God, हो सकता है परमेश्वर के लिए आप बड़े-बड़े बलिदान करते हो, but if you didn't obey, लेकिन परमेश्वर की बात ही नहीं मानते, all your sacrifice are in vain. तो सारे बलिदान बेकार हैं। That is why Zen talk about good work. इसलिए याकूब में लिखा है कि हमें अच्छे काम भी करने हैं। The Bible says you have if you believe, बाइबल बताती है अगर आपने विश्वास किया है show your action. तो अपने कामों में भी अपने So विश्वास when you दिखाओ। believe, what is you need to show your action? अगर आपने विश्वास कर लिया तो अपने कामों में आप क्या दिखाओगे? Our action is baptism. Our action is Lord's Table. अपने कामों में मतलब बपतिस्मा लेते हो, प्रभु बोझ So करते you हो, show yourself that I am the child of तो God. आप अपने कार्यों के द्वारा भी दिखाते हो And कि you आपका show विश्वास yourself that I मसीह में
और आप दिखाते हो क्या He is my कि Savior. वो मेरा बचाने No वाला है। matter what, चाहे कुछ भी हो, I will die for Him. मैं उसके लिए मर सकता I will हूँ, live for Him. मैं उसके लिए जीऊंगा। So now you show your action. मतलब अपने कार्यों में आप परमेश्वर का विश्वास दिखाते And when you believe and do good things, हो, और जब अच्छे काम भी करते हो then there is a blessing. तो आशीष आता है। Good work will never take to heaven. अच्छे काम करने से हम स्वर्ग नहीं जाते हैं, But believe in Jesus, do good work, there is a reward. लेकिन विश्वास करने के बाद जब हम अच्छे काम करते हैं तो उसका इनाम हमें Today मिलता many है। people do good work. आज बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं, More than a Christian. मसीह लोगों से ज्यादा हिंदू और मुस्लिम लोग मेहनत करते हैं। You know, the Punjabi, so many people, they offer poor, like giving drink, food, clothes, shelter, so many things. आज आप ये देखिए सिख लोग या सरदार लोग कितना परमेश्वर के नाम पर वो इतना बड़े बड़े काम करते हैं, बांटते हैं, मदद करते हैं लोगों की। So if the good work will take to heaven, everyone will go to heaven. अगर हमारे अच्छे काम हमें स्वर्ग ले जाएंगे तो हर कोई इसका अच्छे काम ही करता But the है। Bible says, until now, unless you believe, पर you बाइबल में accept लिखा है it, you will never go to the heaven. कि जब तक तुम मुझे विश्वास नहीं करोगे तब तक स्वर्ग नहीं जाओगे। And all these things they have reward on this earth already done. तो जिन्होंने The people are not believe they do good work, they have done for this earth. God never count them. तो जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह में और अच्छे अच्छे काम किए तो उसका इनाम उन्हें धरती पर ही मिलेगा, पर स्वर्ग में कुछ नहीं होगा, Because good work will not save them. क्योंकि अच्छे काम करने से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, But believe in Jesus पर Christ. will save विश्वास करने से हम स्वर्ग जाएंगे। them. Believe that Jesus is your Guru. विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। I didn't tell that to become a Christian. No, Christian name will never take you to heaven. सिर्फ क्रिश्चियन बनने से, क्रिश्चियन का टैग लगाने से, क्रिश्चियन बन जाने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। Follow His teaching. उनके वचन पे चलने से आप स्वर्ग जाएंगे, Believe His teaching. विश्वास करने से जाएंगे। In His teaching, everything. परमेश्वर के वचन में सब कुछ है। Bible say you will be healed, you will be delivered. बाइबल कहती है कि आप चंगे हो जाओगे, छुटकारा You will be पाओगे, blessed. आशीष पाओगे। Bible say you should not committing sin. बाइबल कहती है हम पाप नहीं करो, Bible say you should not lie. झूठ नहीं You बोलो, should not steal. चोरी मत You should करो, not worship idol. मूर्तियों की आराधना You मत should करो, not fall witness. और आप गलत काम नहीं You should करना, not do झूठी गवाहियां नहीं देनी है, काला जादू तंत्र मंत्र नहीं You should करना, not cheat. धोखा नहीं You should देना, not deceive. धोखा नहीं देना, Love one another. एक दूसरे से प्रेम रखना Forgive one है, another. एक दूसरे को माफ You should करना not है, murder. किसी से खून नहीं करना है। All these things teaching for us are good. ये सब चीजें हमारे भले के लिए ही हैं। So if you believe, अगर आप विश्वास करते you हैं need to live according to the word of तो God, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है, so that you will be saved ताकि आप बच जाएं and you will go to heaven, the place that He is. और आप स्वर्ग जा पाए जहाँ पे परमेश्वर भी है। But if you didn't follow Him, लेकिन अगर आप परमेश्वर पे नहीं, वचन पे नहीं चल रहे, how can I go to that? तो मैं कैसे उनके घर पे जाऊंगी? See, if Preeti say, okay, I believe Pastor Kamai and I will follow him. If he never follow me, then how can we come together? तो अगर मैं अपने मुंह से तो बोल रही हूँ कि मैं पास्टर के हिसाब से चल रही हूँ, लेकिन अपने कामों में नहीं दिखा रही, तो इसका मतलब मैं नहीं चल रही। I say, okay, मैं यीशु को मानता है तो you continue worshiping idol. Then how? अगर आप मुंह से बोल रहे हैं कि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ और बैठे मूर्ति के आगे आरती कर रहे हैं, तो कैसे विश्वास? And whatever you want to do, you continue doing. और आप जैसे पहला गंदा जीवन जिए थे अभी भी वैसे ही जीवन जी रहे हैं, तो कैसा यीशु में विश्वास? And your life never change. आपका जीवन नहीं बदल Your रहा, life never transform. आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं है, And those things, the name will never take you to heaven. तो ये कैसा विश्वास है? और ये चीज आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी। But believe and follow His teaching will lead you into heaven. लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो ही आप स्वर्ग जा पाएंगे। So that is why Lord's table is very important. This is command by God and command to do all the time is until He returns. इसलिए प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कहा है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब भी संगति करो, तब तक इसको लेना ही है। And then when we take it, we remember Jesus is wounded for you. He was cast down His flesh. Blood was setting out, and He was beaten up, and He took our curse, He took our sin. So when you take the bread, the flesh, then how Jesus suffered for you. और जब हम यीशु की हमें देह को और लहू को लेते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ सच में यीशु मसीह हमारे लिए मरे, उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उनका जो लहू बहा वो हमारे मेरे पापों के लिए बहा। For everyone, हर किसी के लिए, all the living in this world, जितने लोग आज इस दुनिया में जिंदा हैं, He suffered for everyone. वो हर किसी के उन्हें सताया गया उनको, But many people didn't believe. पर बहुत लोग विश्वास नहीं करते। God come for everyone. परमेश्वर हर किसी के लिए आए, God love everyone. परमेश्वर हर किसी से प्रेम करते हैं, But the person accepted, denied it. लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपना लेते हैं और छोड़ देते हैं। See, there's a God said, God so loved the world, He gave only begotten Son. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। But whoever believes in
Jesus, they have the eternal life. लेकिन जो यीशु में विश्वास करेगा वो ही अनंत जीवन को पाएगा। But those who are not believe it, they will be perished. जो विश्वास नहीं करेगा वो अनंत जीवन को नहीं पाएगा। See, that is the thing. Very simple. Jesus, God loved everyone. परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। See now, for example, जैसे कि Jesus entered to this house now. जैसे यीशु इस घर में आते हैं, Now we are हम बैठे हैं 20 people, 20 लोग, 15 people, 30 people, 40 people. 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग। Jesus entered. यीशु यहाँ आए They will come, oh Lord, I receive you, come to my life. और लोग कि अरे अरे परमेश्वर मुझे भी चाहिए, आप मेरे पास आओ ना। Then some people will say, no, but he can. कुछ लोग हैं कि कौन है ये, जाने दो ना, आया जाने चला जाएगा। So the person not accepted in his तो life. जो जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, See, God come for everyone in this church. परमेश्वर तो कलीसिया में सबके लिए आए, But everyone, somebody will accept, somebody will deny. पर कुछ लोग तो अपना लेंगे, कुछ लोग भाव ही नहीं देंगे। God never force us and He never do. God giving a free choice. परमेश्वर ने हर किसी को एक फ्री इच्छा दे दी है कि जो करना है करो, कभी जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करता है। But God say, if you believe, I give you free choice. But if you choose to believe, accepted me, you have the eternal तो life. परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें एक स्वयं की इच्छा दी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर तुम उस इच्छा से मुझे अपनाते हो तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। But if you didn't believe, apart from me, you go another way. You go to hell. लेकिन ending will be hell. लेकिन मुझ में विश्वास करने के जगह तुम किसी और चीज में विश्वास करो, तुम्हारा अंत नरक ही होगा। That is why see God today. There is so many people living in this world. God didn't say, "Oh, don't worship idol," but God said, "Don't worship idol." He teaches us. He show us the way. But that is the person's choice. तो परमेश्वर अपने वचन में लिखते हैं कि मूर्ति की आराधना नहीं करनी है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर ने अपनी स्वयं की इच्छा दे दी है। So that is the thing. God is waiting for the end day. He will surely come back तो again. परमेश्वर सिर्फ इंतजार कर रहा है कि जब वो आखिरी समय में आएगा हमारा न्याय करेगा, And when He come back, और जब वो आएगा there is no time to repent. तो उस समय हम पश्चाताप नहीं कर सकते। But this is the day that the Lord has made us to be repent, to accept it. तो जब तक यीशु मसीह दोबारा वापस नहीं आ जाते, तभी तक हमारे पास समय है कि हम पश्चाताप कर लें। Amen. आमीन। God is good all the time.